سب کے نام لینے کا ٹائم نہیں ہے، جن کے لیے کیا ہے وہ سب کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب پر سب کے حسب حال فضل و کرم فرمائے۔ اگر تو آپ کے جاگنے کا پروگرام ہے پھر تو صبح تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر مختصر وقت کے لیے ابھی یہاں پہ موجود ہیں تو میں صرف حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، حضور کی تعریف و توصیف کے لیے، حضور کے فضائل، مناقب، محامد، کمالات، معجزات، آپ کے حسن و جمال، خد و خال، پاک کردار اور شیریں گفتار، حضور کی تعلیمات اور حضور کے مشن مبارک، اس کے پھیلانے کے لیے، اشاعت اور ترویج کے لیے اہل سنت و جماعت کو منتخب فرمایا۔ شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی۔ میلاد شریف کے حوالے سے جتنی ہم عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، محامد، حضور کی عظمتیں اور حضور کے مقامات اور حضور کے رتبوں کو جو بیان کرتے ہیں، ان سب پر الگ الگ سے گفتگو کی جائے تو ٹائم لگ سکتا ہے۔ جامع بات مناسب ہے، جو تمام مسائل کا حل بھی ہے، نسخہ جامعہ ہے اور نسخہ کیمیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میلاد شریف کیوں مناتے ہیں، راتیں کیوں جاگتے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ حضور کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں، نیند چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں۔ تو ان سب کی بنیاد جس امر پر ہے وہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس سے محبت۔ یاد رکھیے کہ سرکار کی محبت کے حوالے سے تین چیزیں بنیادی ہیں۔ اختصار کے ساتھ ان کے بیان کے بعد میں اصل مسائل کی طرف آ جاؤں گا اور سارے مسئلے پر آسانی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ جتنے سوالات ہوئے کچھ زبانی ہوئے اور ایک دوست نے ایک پرچی لکھ کر دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت فرض ہے، شرط ہے، لازم ہے۔ ترتیب غلط ہو گئی ہے، شرط ہے، فرض ہے اور لازم ہے۔ دوسرے لفظوں میں حضور کی ذات سے محبت ضروری ہے۔ دوسری بات، اس محبت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، اس محبت کو بڑھانا بھی ضروری ہے۔ یہ سب قرآن و سنت کے فیصلے ہیں، امت مسلمہ کے اجماعی مسائل میں سے ہے۔ سرکار کی ذات سے محبت ضروری ہے، اس محبت کو بچانا بھی ضروری ہے اور اس محبت کو بڑھانا بھی ضروری ہے۔
میں چاہتا ہوں ان 3 جملوں کو میں ایک مختصر دلیل سے مزین کر دوں تاکہ بات دعوے کی حد تک نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اس پر دلائل بے شمار پیش کیے جا سکتے ہیں. میں مختصر بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور کی ذات سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ضروری ہے. آپ کہیں گے سمجھے نہیں ہیں، اور کچھ حضرات کا چپ رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھے نہیں ہیں. ذرا اس کو کھولنا چاہتا ہوں. حضور سے محبت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ سے محبت ضروری. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو محبت ہے وہ ہے بنیاد. ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، لیکن وہ محبت ہم نہیں کر سکتے حضور کی محبت کے بغیر. اللہ کی محبت کا ذریعہ جو ہے وہ سرکار کی ذات کی محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ابھی سے ایک بات کی وضاحت کر دوں. کچھ حضرات یہ آیت پڑھتے ہیں اور یعنی جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ آیت کے لفظ ہیں سورہ بقرہ شریف کے 2 پارہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں سرکار کا نام تو نہیں ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے جدا نہیں ہے، بلکہ سرکار کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. ان کو الگ سمجھنا صحیح نہیں. ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مزے کی باتیں ساری ہیں لیکن اس کی وضاحت میں جو یعنی نیند بھی کھل جائے اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی، جن کو مولوی مانوی کہتے ہیں، عارف رومی بھی کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، پرانے زمانے کے. مثنوی ان کی یادگار ہے، کتاب ہے ان کی منظوم کلام کی، جس میں بڑا ذخیرہ ہے اس میں روحانیت کا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے فرمایا، بیٹے میرے کمرے میں جاؤ، شیشہ رکھا ہوگا لے آؤ. شاگرد تھا بھینگا، احول، جس کو ایک ایک کئی نظر آتے تھے. جانتے ہیں بھینگا؟ جی بھینگا نہیں جانتے تو چپ کیوں؟ پھر نیند ہے کیا؟ بھینگا اس کی آنکھیں کسی طرف ہوتی ہیں اور دیکھ وہ کس طرف رہا ہوتا ہے، اور ایک کے اس کو کئی نظر آتے ہیں. وہ جب اندر گیا تو اس کو ایک شیشے کے کئی نظر آئے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ استاد صاحب نے تو فرمایا کہ ایک شیشہ لے یا تو کئی شیشے رکھے ہیں، تو میں کیا کروں؟ باہر کیا کہتا ہے، استاد صاحب السلام علیکم. جی بیٹے وعلیکم السلام. حضرت آپ نے فرمایا شیشہ لے، اندر تو بہت شیشے رکھے، میں کیا کروں؟ کتنے لے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ ایک لے آؤ، باقی توڑ دو. اب چونکہ حکم تھا تو یہ بن گیا الامر فوق الادب، یعنی اپنے طور پر اس کی مزاج کے مطابق، اس کی یعنی سمجھ کے مطابق. وہ جو گیا اس نے اینٹ اٹھائی، پتھر اٹھایا، شیشے کو مارا، وہ تو تھا ہی ایک، وہ تو چکنا چور ہو گیا، وہ تو بالکل یعنی ریزہ ریزہ ہو گیا. اب کوئی شیشہ ہی نہیں رہا. آ کر کہنے لگا استاد صاحب میں نے وہ توڑا ہے لیکن اب تو کوئی شیشہ رہا ہی نہیں ہے.
مولانا رومی रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मिसाल के जरिए मसला समझाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अलग समझने वालों, तुम अकीदे के भेंगे हो। बेटे पहले तकबीर और रिसालत भी होते सुन्नियों के जलसे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान करम हजूर गजाली ज़मा। तो मतलब यह है कि जो ये कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत अलग, रसूल की मोहब्बत अलग, हुजूर को अगर दरमियान से हटा दिया जाए तो खुदा की मोहब्बत बाकी रह सकती ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद भी सरकार की मोहब्बत पर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम। मैं एक जुमला आसान अर्ज करना चाहता हूँ, मजीद बात जब वाज़ेह हो जाएगी सारे मसले इंशाल्लाह आप देखेंगे बिल्कुल आनन फानन हल हो जाएंगे। बुनियाद होती है जरा मुश्किल, दीवार आसान होती है। तो अब जरा तवज्जो फरमाइए, मेरे मुताले के मुताबिक ये जो शख्स हुजूर से मोहब्बत नहीं रखता वो तो मुसलमान क्या इंसान कहलाने का मुस्तहिक भी नहीं है, यानी वो इंसानियत से भी खारिज हो जाता है बंदा, अगरचे शक्ल इंसान की हो। और ऐसा होता है जी। मैं चलो वजाहत करते हुए एक आपकी इजाजत से एक बात साथ मिलाना चाहता हूं। इमाम अहले सुन्नत और शेखुल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इल्म हदीस में हमारे असातिज़ा में से हैं, ग़ज़ाली ज़मां के भी असातिज़ा में से हैं और खुद आला हजरत के भी असातिज़ा में से हैं। इनका बड़ा रुतबा है, इमाम अहले सुन्नत है। आप दिल्ली के बाजार से गुजर रहे थे, एक पागल औरत मशहूर थी जिसको कपड़ों की भी होश नहीं होती थी। वो बाजार से गुजर रही थी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जब वहां से गुजरे तो वो मुंह छुपाने लगी, इधर सुतून के ओट में जाती, दीवार की ओट में छुपती, दुकानों के पर्दे में छुपती। जवान आ गया है, जवान आ गया, मुझे छुपाओ, जवान आ गई, ये भी साथ कहती थी। साथी ने अर्ज की, हुजूर सारे लोग चल फिर रहे थे, वो आराम से बाजार के अंदर मौजूद रही, आपको देखा तो कहती है जवान आ गया, छुपने लग गई, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया अभी मैं बताता हूं। आपने दी उसको अपनी टोपी मुबारक, फरमाया सर पे रखो। जब सर पे रखी और बाजार का फरमाया बाजार का चक्कर लगाओ, बाजार में जब गया तो एक बंदा भी नहीं था, कहीं पे रीछ, कहीं पे बंदर, कहीं पे भेड़िए, कहीं पे कुत्ते, कहीं पे लोमड़, यानी अपनी अपनी खराबियों की बिना पर जो जो बदअमालियां थी, वो शक्लें जो असल बातिन में शक्लें थी वो उसको सारी नजर आने लग गई। वापस आया तो कहने लगा, हुजूर बाजार में तो कोई बंदा है नहीं, सारे जानवर फिर रहे। फरमाया उसको कोई बंदा नजर आता तो छुपती। तो जब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, आप भी जिंदाबाद। नहीं, सबको जो जिंदा कर दिया है। फरमाया जब मैं बाजार में गया तो बंदा नजर आया सिर्फ मैं, तो इसलिए मैं छुपने लग गई। और मैं पूछता हूं, अमली खराबी हो तो बज़ाहिर शक्ल इंसान की होती है, बातिन में कुछ और शक्लें होती हैं।
तो जब हुब रसूल से बंदा खाली हो, हुब रसूल तो ईमान है, जब नेक अमल से खाली हो बंदा बंदा नहीं रहता, तो जब हुब रसूल से खाली हो तो इंसान इंसान कैसे रह सकता? तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब सईदी, अल्लाह खिजरी उम्र अता फरमाए। मैं इस पर एक यानी जो दलील पेश करना चाहता हूं उस पर गौर फरमाएं। वो दलील कोई आयत नहीं है, कोई या हदीस नहीं है, या कोई किताब नहीं है कि भाई नींद के टाइम आप कहें कि हम पर वजन डाल दिया गया है, और नींद के टाइम हवाला पेश करना बड़ा मुश्किल होता है। इब्रीज एक किताब है, इब्रीज। अब किसी दौर में नींद के टाइम मैंने तकरीर की थी, मैं उसके हवाले पेश करता था। इब्रीज, मैं कहता मेरे भाइयों इब्रीज। फिर मुझे ख्याल पैदा हुआ मैं पूछूं तो से, मैंने कहा सुनो, कहते सुन लिया। मैंने कहा क्या नाम है? कहते इबलीस। अब मैं इसलिए जो है कोई हवाले की तकलीफ आपको नहीं दे रहा, वो पेश कर रहा हूं जो आपको भूले ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमारा जो नाम रखा है, हमारी नौइयत का नौई नाम हमारा, वो है इंसान। बोलो भाई है या नहीं? ये जब सब इंसान है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने सबको बोलना चाहिए ना। क्या नाम है हमारा? इंसान। और अल्लाह ने जब खिताब फरमाया तो एक खिताब ये भी फरमाया, या अय्युहल इंसान। और जब इबादत का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहन नास। और जब अपने महबूब को ऐलान रिसालत नबूवत फरमाने का हुक्म फरमाया तो फरमाया मेरे महबूब कुल या अय्युहन नास। और ये अन्नास का लफ्ज जो ये इंसान की जमा है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि भाई जब हमें इंसान है तो हमें इंसान क्यों कहते हैं। यानी एक तो होता ना दूसरे का पता हो, हमें अपना भी पता नहीं है जी। एक तो दूसरे का पता ना हो, हमें अपना भी पता नहीं है। तो अब आज पता लगाना भी इंसान हमें क्यों कहा जाता है, इंसान का माना क्या है। इसी से यह मसला साबित होता है लफ्ज़ इंसान से कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा इंसानियत से खारिज होता है। सिर्फ अब हिम्मत कर दिया समझने की, यह भी हिम्मत वाली बात है। नींद का टाइम समझना। आज ये जरा तवज्जो फरमाएं, इंसान किस लफ्ज़ से बना, इसका माखज़ इश्तिकाक क्या है। बाद ने कहा इसका माखज़ है उन सुन। बोलिए उन सुन। इसको अगर हम वक्फ करें आखिर में तो मुख्तसर कहेंगे उन्स जी। अरबी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उन सुन, अपनी बोली में कहेंगे उन्स। उन्स पैदा हो गया, ये बोलते हैं हम लफ्ज़। और बाद ने कहा इसका माखज़ है निस्यानुन। इसलिए थोड़ा बड़ा चुप हो जाए। आज ये लफ्ज याद कर लेंगे तो आगे इंशाल्लाह अगला मरहला आसान हो जाएगा। बाद ने कहा इसका माखज़ है निस्यानुन, जिसको वक्फ करेंगे तो कहेंगे निस्यान। इंसान बड़ा है उन्स से या इंसान बड़ा है निस्यान से। निस्यान का माना होता है भूल जाना, और उन्स का माना होता है मोहब्बत करना। तो पहले तो ये चक्कर निकाला जाए कि बना कैसे है, दो कौल जो हो गए सही कौन सा है। तो फैसला यह है कि दोनों सही है जी। फैसला यह है कि दोनों सही, क्योंकि निस्यान का माना जब भूलना है तो भूलने की कोई ना कोई वजह होती है जी। भूलने की कोई ना कोई वजह होती है। दिमाग कमजोर हो, कुव्वत हाफिजा कमजोर हो, बंदा परेशान हो तो बातें उसको भूल जाते हैं। ज्यादा मसरूफ हो तो भी भूल की बीमारी पैदा होती है। लेकिन यहां पर जो भूलने का माना है ये उन्स की बुनियाद पर है जी। दिमाग की खराबी, कुव्वत हाफिजा की कमजोरी की बुनियाद पर नहीं। लफ्ज़ इंसान में जो निस्यान है ये है मोहब्बत के मादे की वजह से। बंदा एक सूरत भूलने की यह भी होती है कि जब वो किसी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो दूसरों को वो भूल जाता है
आप मेरी बातें सुन रहे हैं, घर भूला हुआ है कि नहीं? ये जो चुप है इनको याद है कब तकरीर खत्म हो जाए हम यहां से। और नहीं बोले तो तबसरा करूंगा, इजाजत होगी फिर तबसरे की, फिर ना कहना। यानी मैं यूं नहीं कहूंगा बोलो जोर से करो, यूं करो, मिन्नत नहीं करनी, आपने खुद ही बोलना, फर्ज समझना अपना। जरा तवज्जो फरमाए, बंदा जब किसी चीज की तरफ रग़बत करे, उसका कल्बी मैलान हो, तो उसकी तवज्जो उस वक्त उसी की तरफ होती है, दूसरों को वो भूला हुआ होता है। तो लिहाजा इसका उन्स माखद ये भी सही है और निसियान माखद ये भी सही है। अब माना ये होगा मोहब्बत की वजह से भूलने वाला इंसान का माना होगा मोहब्बत की वजह से भूलने वाला। अब अगली बात यह है, किसकी मोहब्बत? लफ्ज़ इंसान में जो मोहब्बत रखी गई है, जिसकी वजह से वो भूल जाता है, ये मतलूब मोहब्बत कौन सी है? अल्लाह ने रखी है। किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। एक रोटी का छोटा सा रुमाल भी जिस फैक्ट्री में तैयार हो, मिल में तैयार हो, उस पर उसकी स्टैंप होती है, मुहर होती है, भाई फुला फैक्ट्री से ये बना। छोटा सा पुर्जा भी हो, बल्कि पुर्जी हो छोटी जी आप देख दोगे छोटा सा लिखा होता है उसमें जी, छोटी सी मुहर लगी होती है, भाई फुला मिल से ये बनी। होता है कि नहीं होता? तो मालूम हुआ कि जब मोहब्बत का मादा रखा गया है, तो जिसने बनाया है, जो फैक्ट्री बनाए, उसी की स्टैंप होती है। तो लिहाजा जिसने हमें बनाया, फैक्ट्री की मिसाल बात समझाने के लिए है, ये उसी की मोहब्बत का मादा है बंदे के अंदर जी। तो माना होगा कि रब से मोहब्बत की बुनियाद पर भूल जाने वाला जी। मजे की बात है, सूरह अहज़ाब की आखिरी रुकू को पढ़े, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपनी अमानत मोहब्बत वाली, मैंने पहाड़ों से कहा ले लो, कहने लगे मजाल है, हमारे अंदर इतना ताब नहीं है जी। हमने जमीनों पर पेश की, उन्होंने माजरत की, हमने आसमानों पर पेश की, उन्होंने माजरत की। हमने कहा इंसान आ गया मैदान में, जी मालिक मौला, यार मेरी अमानत है, मेरी मोहब्बत वाली अमानत है, लेगा तू? अल्लाह फरमाते हमल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, न आओ देखा न ताओ देखा, कहने लगा हाजिर हाजिर हाजिर। तो ये मोहब्बत का मादा किसके साथ वाली मोहब्बत है? अल्लाह ताला के साथ। ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर दूसरों को भूल जाने वाला। जब ये माना मफहूम वाज़े हो गया, तो अब बात को करते हैं मुकम्मल। गोया अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अब मोहब्बत तब हो सकती है जब बंदा अपने हवास से महसूस करे या अपनी अक्ल के हवाले से मालूम करे जी। लफ्ज़ जरा मुश्किल है और बुनियाद मुश्किल होती, मैंने पहले कहा था, मुश्किल से पहले गुजरेंगे तो आसानी पैदा होगी। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, उसर पहले युस्र बाद में है। तो अब जरा गौर फरमाएं, हवास से बंदा महसूस करे या अक्ल से मालूम करे। अगर महसूस नहीं कर सकता, रग़बत नहीं हो सकती। अगर अक्ल से मालूम नहीं कर सकता, तो किसी तरफ रग़बत नहीं हो सकती। देखिए भाई, हवास है 5, कितने? 5। एक है हवास का मतलब हादसा की जमा, हादसा का मतलब होता है महसूस करने वाली कुव्वत जी,
महसूस करने वाली कुव्वत, और हवास का मतलब महसूस करने वाली कुव्वतें, वो हैं 5। टटोलने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत और चखने की कुव्वत। 4 हमारे सर में फिट हैं जी, सर में फिट है जी। देखने की है आंखों में, गलत हो तो बोल पड़ना, सही हो तो तस्दीक करना, आवाज ना निकले तो सर जरूर हिलाना। मुझे पता चले कब्रिस्तान में नहीं बैठा, मैं जलसे में बैठा हुआ। एक है देखने की कुव्वत, एक है सुनने की कुव्वत, एक है सूंघने की कुव्वत, एक है चखने की कुव्वत। ये चारों की चार हमारे सर में फिट हैं, और एक है टटोलने की जो हाथों में। आप ये देखना चाहें कि भी ये जो लाउड स्पीकर का ये स्टैंड जो है ठंडा या गर्म है, क्या करेंगे? हाथ लगाएंगे, हाथ से पता चलेगा। देखने से पता, कान लगाएंगे तो, सूंघेंगे तो, चखेंगे तो, और चखने से अगर करंट हुआ तो फिर मजा भी आ जाएगा। हाँ, ये भी साथ जरा साथ मिला है। वो नींद का रंग बनेगा, नींद भी खोल दो ना तरफ। अब आप ये देखना चाहें ठंडा है या गर्म है, ये चीज नरम है या सख्त है, तो क्या करेंगे? आप जब कपड़ा खरीद करते हो, यूं नहीं करते भाई इस स्थान से जो है हमें 5 मीटर दे दो, पहले हाथ से देखते हो। ये ईमेल कटवा दे आवेदन, बोलो जो नहीं है बोलो। हाथ से पहले चेक करते हो कि नहीं जी, उससे पता चलता खुरदरा है या मुलायम है, नरम है या सख्त है, फिर पसंद आए तो लेते हो जी। टटोलने से ये बात मालूम हुई। अगर आप ये देखना चाहे भी ये शामियाने का कलर कैसा है, तो क्या करेंगे? देखकर पता चलेगा। अगर आप ये मालूम करना चाहे आवाज जो आ रही है, ये तकरीर है, ये ऐलान है, ये तिलावत है, ये नात है जी, या क्या चीज है, तो क्या करेंगे? कान लगाएंगे, ये कुव्वत कान में। अगर आप ये कहने अगर आप मालूम करना चाहें इत्र की जो 100 शीशियां रखी हुई हैं, इनमें फर्क क्या है, क्या करेंगे? सूंघेंगे। आप यूं नहीं कहेंगे कि भाई ये जो शीशी पड़ी है दे दो, वो आप कहेंगे सूंघाओ, पहले पसंद करेंगे जी। पसंद करेंगे तो रगबत होगी, पसंद आएगी तो फिर उसकी तरफ मैदान होगा। अगर आप मिठाई खरीदना चाहते हैं जी, तो क्या करेंगे? मिठाई पर बड़े बोले भाई, मिठाई पर बड़े बोल पड़े, चखेंगे। बरेली भी हो ना, हलवे के आदि जो हो। अब जरा तवज्जो फरमाए, तो मिठाई जो है ऐसे नहीं खरीदेंगे, खुसूसन नई मिठाई। आप कहेंगे पता नहीं शक्ल ऐसे है, सूरत तो ऐसे, सीरत कैसी हो, उसको कहेंगे जरा चखाओ। फल को भी आप चखते हैं। तो ये 5 कुव्वतें हो गई हमारे अंदर, ठीक है। इन 5 में से हर एक कभी कभी गलती करती है। हाथ में फालिज का असर हो, ठंडा गर्म महसूस नहीं होता। कानों में बहरापन हो तो आवाज का फैसला नहीं हो सकता। अभी आपने सुना था भेंगा बंदा हो तो सही तौर पर फैसला नहीं कर सकता, 1 है या 2 है। जुकाम का मरीज हो तो खुशबू और बदबू का फैसला नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस का मरीज हो, यरकान का मरीज हो, मीठे और कड़वे का फैसला नहीं कर सकता। शहद खाएगा तो कहेगा कड़वा है जी, कड़वा है। हाथ लगाएगा तो कहेगा ना ठंडा है ना गर्म है जी। अगर कोई चीज चखेगा तो कहेगा कि कोई जायका नहीं होता। सूंघेगा तो कहेगा ना खुशबू है ना बदबू है। आंखों से देखेगा, बिना ही कमजोर हो तो नजर नहीं आएगा, बहरापन हो तो फिर सुनाई नहीं देगा। ये 5 कुव्वतें गलती करती हैं। अल्लाह ताला ने इन पर कंट्रोल करने वाली एक और कुव्वत फिट कर दी, उसी को कहते हैं अक्ल। वो कहां पे होती है? दिमाग में जी। कहां होती है? दिमाग कहां पे होता है? जुबान से नहीं बोल सकते, हाथ लगाते हैं। ऊपर थोड़ा होता है दिमाग, पीछे होता है। आप सही कर लो, कहां होता है? पीछे होता है। ये जो जगह उभरी होती है ना, इसमें दिमाग होता है। इधर नहीं होता, इधर तालू होता है। हाँ,
अब जरा तवज्जो फरमाए, जब शहद को कड़वा कहेगी जुबान, अक्ल कहेगी होश कर, खराबी तेरे अपने अंदर है। कड़वा तो शहद को कहती है जी। तो मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह मुझे एक जुमला बोलने दे यहां पे, सरकार का इसमें गिरामी शहद से मीठा है, दूध से लजीज है, अगर किसी को अच्छा ना लगे उसका अपना जायका खराब है। जश्न ईद मिलादुल नबी, उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती अहले सुन्नत पाकिस्तान। अच्छा, अब नारे लगाने थोड़े, टाइम है थोड़ा। ये आप टाइम ले जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह सकूंगा मेरा टाइम ले लिया आपने, क्योंकि मैं नहीं ले सकूंगा बस। तो ये यानी टाइमिंग होती है जलसे की, तो इसीलिए मैंने पहले पूछा था, तरीके से बताया तो किसी ने है नहीं मुझे कि भाई फजर तक प्रोग्राम है तो चलेंगे, थोड़ा टाइम है तो फिर छोड़ो। अभी हाजिरी पेश करता हूं, कोई भी नहीं बोला। आपको यहां पर बिठाकर हम चले जाएंगे, बैठे रहना, दुरूशी पढ़ते रहना। हाँ जी, अच्छा चलिए ठीक है, एक माहौल बन गया है। अब मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बात को जरा मुझे मुकम्मल करने दें। हवास करती है गलती, कंट्रोल करती है अक्ल, शहद लगेगा कड़वा, अक्ल कहेगी तू खुद खराब है, और सूंघने की कुव्वत कहेगी ना खुशबू ना बदबू, अक्ल कहेगी तेरे अंदर खलल है। एक के दो नजर आएंगे, आंख कहेगी ये दो है, चीज एक होगी, अक्ल कहेगी तेरे अंदर खराबी है। समझ में आई? अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, एक मौका ऐसा आता है अक्ल भी गलती करती है। पेंसिल को शीशे के भरे हुए पानी से भरे हुए गिलास में डाल दे, वो टेढ़ी नजर आएगी, हालांकि पेंसिल टेढ़ी नहीं, गिलास टेढ़ा नहीं। ये आंख जो है समझने में, रिपोर्ट देने में गलती कर रही है, तो कंट्रोल कौन करता है? अक्ल। अक्ल भी गलती करती है। अक्ल गलती ना करती होती तो साइंसदानों का एक ही मसले में इख्तिलाफ ना होता। अक्ल गलती ना करती होती तो इज्तिहादी मसाइल के अंदर कई की अकवाल ना होते। हक तो एक होता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हवास गलती करें तो अक्ल कंट्रोल करती है, और अगर अक्ल गलती करे तो उसको जो कंट्रोल करता है उसी को नबी कहते हैं, उसी को रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम। बात आगे निकल जाएगी, मैं इसको जरा समेटना चाहता हूं। बंदा रग़बत तब करेगा किसी चीज की तरफ जब उसको महसूस करे या अक्ल के जरिए मालूम करे। यानी कुछ चीजें हवास के जरिए मालूम होती है और कुछ चीजें अक्ल के जरिए। दो और दो कितने होते हैं? ये देखने से मालूम होगा या हाथ लगाने से? शाबाश। और मैं तो चेक कर रहा था भी नींद कर रही है, जाग रहे हैं। अब बोलो भाई, फिर चखने से मालूम होगा। और ना देखने से, ना चखने से, ना सूंघने से, ना हाथ लगाने से, ना सुनने से, ये अक्ल से मालूम होगा। आगे समझ में? अक्ल से मालूम होगा दो और दो कितने होते जी। अक्ल से मालूम होगा मैं जो 20 रुपए दे रहा हूं इनको, 10 रुपए किलो चीज है तो मैं कितने वापस लूं? हाथ लगाने से पता नहीं चलेगा। हिसाब थोड़ा पूछा मैंने आपसे। मैंने कहा फैसला अक्ल करेगी। अच्छा खैर, मतलब चौका को ऊपर बैठे, जरा फ्रंट सीट वालों को नहीं करना चाहिए।
अच्छा, अब जरा समझने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी मोहब्बत के लिए। बंदा मोहब्बत कर नहीं सकता जब तक महसूस ना करे या अकल से मालूम ना करे। अल्लाह ताला तक हवास भी नहीं पहुंच सकते, अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। और फिर फरमाता है मैंने पैदा किया इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, ना किया तो मारूंगा, ये भी साथ अजाब दूंगा, मेरे साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे पास जराए हैं उसको समझने के वो नाकिस हैं। जराए हैं 6, 5 हवास और 6ठी अक्ल। अल्लाह ताला हवास से भी बाला तारा है, अक्ल से भी मावरा है। आप फंस ना गए, मुश्किल ना पड़ गई जी। मोहब्बत भी जरूर करो, ना करोगे तो मारूंगा, अजाब दूंगा तुम्हें। और हवास और अक्ल हमारे पास जराए हैं, और ये उसका जरिया कामिला नहीं है, सही जरिया, पूरा जरिया नहीं है उसका पता लगाने का। फंस गए, पेचीदगी पैदा हो गई। इसी पेचीदगी के हल का नाम है मदीने वाला। हुजूर अल्लाह ताला की मोहब्बत का जरिया है। मैं इसको भी नींद की वजह से, यानी नींद के टाइम की वजह से आसान करके पेश करना चाहता हूं। ऐसा आसान करूंगा कि बेशक अब मैं कहता हूं, इख्तियार देता हूं, नींद करते रहे, मैं नींद में पहुंचा देता हूं। ये जो चुप है ये सोच रहे कैसे पहुंचूंगा। कब्रों में हम खत्म नहीं पहुंचा देते। आप क्या चीज है, सामने बैठे हुए हैं, तकरीर भी नहीं पहुंच सकेगी। मतलब है मैं सोने दूंगा तो फिर नहीं पहुंचेगी ना। आज ये मतलब है। अब जरा तवज्जो फरमाएं। एक बच्चा जब कहीं पे पढ़ना शुरू करता है, उसको किताब नहीं पढ़ाते, बस के उसको कायदा पढ़ाते हैं। अब माहिरीन नफ्सियात ने यह मालूम किया कि अगर कायदा हो तस्वीर वाला तो बच्चा जल्दी समझ जाता है, बेकायदा तस्वीर हो तो बच्चे के लिए मुश्किल होती है। तो इसलिए कायदा निकला अलिफ अनार, बे बकरी, ये तो लगता पढ़े ही नहीं है, पे पंखा, ते तख्ती, ते टोपी। अब कबल के पड़े हुए हैं। अब मैं समझ गया हूं, बस मिसाल देनी थी जी। अब ये क्यों इसके लिए बात तस्वीर बना, मैं ये तस्वीर की बहस नहीं चला रहा भी कौन सी तस्वीर जायज है कौन सी नाजायज है, इसमें ना पड़ जाना और फिर सुबह को वो दलील ना बना दे आज तस्वीरें जायज हो गई है मुतलकन। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं बात समझाने के लिए। अगर छोटे बच्चे को मदरसे में स्कूल में बिठा कर उसे कहे पढ़ो भाई अलिफ 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 बे 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 को कहे मुसीबत में फंस गया है। लेकिन अगर अलिफ के साथ बना दो अनार, दिलचस्पी बढ़ जाएगी। वो कहेगा अब्बू ले आते हैं, वही तो है खाते। कोई अंदर से सुर्ख निकलता है, कोई अंदर से सफेद निकलता है, कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है, कभी खट्टा मीठा होता है। आगे देखा कि बे बकरी, बकरी की तस्वीर, वो ये वही मेमनी तो है जो घर में होती है, मेमी ले ली, इसके साथ खेलते हैं, उनसे पैदा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बच्चे को कायदा पढ़ाना, अलिफ बे पढ़ाना मकसूद है या तस्वीरें दिखाना मकसूद है? तस्वीर तो है बहाना। देखे अनार को, समझे अलिफ को। जाना पड़े रहना नींद में। मैं जो बात कर रहा हूं जरा सुने उसको तवज्जो से। देखे बकरी की तस्वीर को और समझ जाए कि बे कैसे पढ़ते हैं। देखे पंखे की तस्वीर को, हिम्मत फैन, गर्मी में जिसका बिल भी ना आए जी, और समझे पे के तलफ़ुज़ को। बिला तशबीह हो तमसील अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बनाया इंसान। इंसान का मतलब है मुझसे उन्स करो। मुझसे उन्स करना तुम पर फर्ज है, तुम पर लाजिम है। मुझसे उन्स न किया तो तुम्हें अजाब दूंगा।
अब रही ये बात कि जब न आंखों से देखा, न कानों से सुना, न हाथों से टटोला, न नाक से सूंघा, न जुबान से चखा, न अक्ल के हिसाब से हमने मालूम किया, तो तेरी तरफ रग़बत कैसे पैदा होगी, मोहब्बत कैसे पैदा होगी। या अल्लाह ये तो पेचीदगी है। फरमाया इस पेचीदगी का हल ये है, एक तस्वीर दे देता हूं, देखो उसको, समझो मुझको। वो तस्वीर है सरकार की। तो मालूम हुआ सरकार से मोहब्बत के बगैर अल्लाह से मोहब्बत हो सकती ही नहीं है। इसलिए हुजूर से मोहब्बत शर्त भी है, फर्ज भी है और लाज़िम भी। जज़ाकल्लाह। मैंने पहले कहा यार मेरा टाइम बचाओ, ये तो मैं बात पूछ रहा था इसलिए मौका मिल गया आपको। अब खबरदार बैठने का। अच्छा, अब मैं बात को समेटना चाहता हूं। ये बात पक्की हो गई कि हुजूर से मोहब्बत लाजिम है। हिम्मत करो, हुजूर से मोहब्बत लाजिम है, लाजिम है। और हुजूर न होते तो अल्लाह ताला का इल्म हमें न होता, तौहीद का पता न चलता, कुरान न मिलता, रमजान न मिलता, नमाज न मिलती, हज की सादत नसीब न होती, ज़कात के फरीजे का मौका न मिलता, जिहाद और तबलीग का चांस न मिलता। न सुभान अल्लाह कह सकते, न अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते, न अल्लाह अकबर कह सकते। जो हमें मालूम हुआ सरकार के सदके में मालूम हुआ। तो हुजूर हुए बुनियादी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। अब बड़ी नेमत जब मिल जाए तो खुशी होती है कि नहीं? तो जब नेमत बड़ी हो तो खुशी भी बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी। तो फिर क्यों पूछते हो, ईद क्यों कहते हो? सुभान अल्लाह। या बड़ी नेमत ना मानो या ईद का इनकार ना करो। जब नेमत बड़ी है तो खुशी भी बड़ी है। और बड़ी से बड़ी खुशी को हमारे मुहावरे में कहते हैं ईद। 5 साल के बाद बेटा मिलने के लिए बाप को, भाई जुदा हो 20 साल के बाद आए, वो देखकर कहेगा आज तो मेरी ईद हो गई है। और आरज़ी दोस्त आ जाए तो उसकी मुलाकात तो हो गई ईद। जो इधर भी छुड़ाने वाला हो, कब्र में भी बचाने वाला हो, आखिरत में भी अजाब से नजात दिलाने वाला हो, उसकी आमद बताओ क्यों ईद नहीं है? जरा फैसला तो करके दिखाओ। सुभान अल्लाह। ये पर्ची है, पर्ची का जवाब है जी। मैं यानी चाहता हूं मैं थोड़े से वक्त में ये सारा कुछ हो जाए। अच्छा जी, ईद है तो फिर ये इसकी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तू मुझे दिखा हर ईद की नमाज होती है, मैं इसकी भी शुरू कर दूंगा। हर ईद की नमाज नहीं होती जी। कुछ ईदें तो होती हैं लेकिन उनकी नमाज नहीं होती। अगर हर ईद की नमाज होती है तो कुलिया दिखाओ, आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई थी उम्मत के कहने पर, अभी अभी क्या हो सकता है दस्तरखान उतरे आसमान से, मायदा से मुराद ये होटल नहीं जो ऐसे लेडीज पार्क के साथ खड़ा हुआ है, कहें शायद यही उतरा था, ये नहीं है। अब कुछ लोग वो कहेंगे ना भी हमारा नाम कुरान में है, अब यहां खाना जहां खाया करो, कारोबार चल पड़ेगा। मायदा से ये मुराद नहीं, मायदा कहते हैं उस दस्तरखान को जिस पर हर जायके के खाने हो, नमकीन भी हो, फीका भी हो, मीठा भी हो जी, ताकि जो शुगर वाला है वो फीका खाए नमकीन खाए, और जिसको ये मरज नहीं है वो जो खाए, हर किस्म का जायका हर पसंद के मुताबिक। आपने फरमाया ईमान वाले होकर ये सवाल करना चाहिए तुम्हें, अल्लाह कर सकता है नहीं कर सकता, बंदे बनो, शक करते हो? उनके हुजूर शक नहीं है, हम अपना कल्बी इत्मीनान बढ़ाना चाहते हैं। फरमाया चलो ठीक है, तुम बंदे बनकर पूछ रहे तो मैं अभी ये करा के दिखाता हूं जी। उन्होंने दुआ कर दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा,
تکون لنا عیدن سبحان اللہ تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ایسا دسترخوان اتار، یہ دسترخوان تیری قدرت کی نشانی بن جائے گا اور ہمارے اولین آخرین سب کے لیے عید ہوگا. کیا ہوگا؟ عید ہوگا. اب جب عید یہ ہوا تو بتاؤ اس کے ساتھ نماز کتنی رکعت تھی؟ ہمت کرو ذرا. سبحان اللہ. تو اب ہمارے لیے بھی عید ہے یا نہیں؟ وہ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، فرمایا جو ہمارے ماننے والے قیامت تک کے لیے سب کے لیے عید ہوگا. قرآن میں ہے جی، کیونکہ ہمارا سب نبیوں پر ایمان ہے. جب ان کی شان ظاہر ہوئی تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، لہذا یہ بھی ہماری عید ہے. عید ہے لیکن نماز نہیں ہے. تو ہر نماز کی عید، ہر عید کی نماز ہونا تم دکھا دو، انشاءاللہ اگلے سال سے ہم جاری کر دیں گے. سبحان اللہ. جی ایک بندہ کہنے لگا اگر یہ عید ہے تو پھر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دن پر روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عید کا تو روزہ نہیں ہوتا. اگر روزہ ہے تو پھر عید نہیں ہے. اور میں نے کہا خدا خدا کرو، ہوش کر کے بولو جی، یہ بھی نہیں ہے کبھی کس ہر عید کا روزہ نہ جائز ہو. جمعہ عید ہے سبحان اللہ. جی، سرکار نے فرمایا عید الفطر سے بڑی عید ہے، عید قربانی سے بھی بڑی عید ہے. هو اعظم من یوم الاضحى ومن یوم الفطر، رواہ ابن ماجہ فی سنن بسند صحیح. حضور نے فرمایا جمعہ والی عید عید الفطر سے بڑھ کر عید ہے، عید قربانی سے بھی بڑھ کر عید ہے. اور یہ عید یعنی وہ تو آتی ہے سال میں ایک دفعہ. سبحان اللہ، یہ آ جاتی ہے ہر ہفتے. یہ بڑی عید ہے جی. اچھا مجھے آپ بتائیں، اگر عید کے دن، ہر عید کے دن روزہ منائے تو جب رمضان شریف کا مہینہ ہوگا تو 5 جمعہ تو 5 روزے چھوڑ دو گے نا جی؟ 4 جمعہ تو پھر جمعہ چھوڑ دو گے. عید جو ہوئی تو معلوم ہے ہر عید کا روزہ منع نہیں جی. اگر عید میلاد النبی والے اس کا عید میلاد والی عید کا روزہ منع ہے، یہ آپ دکھا دیں، ہم نہیں رکھیں گے. لیکن خود سرکار سے پوچھا گیا سئلا عن صوم یوم الاثنین، حضور پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ بتائیں، ہم رکھیں کہ نہ رکھیں. اور دوسرا معنی یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور یہ روزہ رکھتے تھے. فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ میرے میلاد کا دن ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. آگے سمجھ میں؟ تو اس سے یہ بھی جواب آ گیا کہ بھائی عیدیں 2 تھیں، آپ لوگوں نے تیسری کہاں سے نکالی؟ میں کہتا ہوں مشہور 2 ہیں، ٹوٹل 2 نہیں. سبحان اللہ. مختصر جملے بول رہا ہوں، آسان سے، نیند کے مطابق، مزاج کے مطابق، ٹائم کے مطابق جی. مشہور 2 ہیں، ٹوٹل 2 نہیں، ان کی جو حد ہی نہیں. اسی لیے عاشق رسول نے جب ترجمہ کیا تھا اس نے کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. ہزاروں عید ربیع الاول، 2 نہیں بلکہ ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی 2 خوشیاں منا رہے ہیں. عیدیں مشہور 2 ہیں، ٹوٹل 2 نہیں. اسی کو لے لیں بھئی، یہ جمعہ جو ہے عید ہے، سال میں آتا ہے 52 دفعہ. سارے حساب کتاب کیے ہوئے ہم نے. سال میں آتا ہے 52 دفعہ. حضور فرماتے ہیں عید ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں جمعہ کا دن عید ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور حضور فرماتے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے. اور یہ آتا ہے 52 دفعہ. تو 52 عیدیں بن کے نہیں بن گئی؟ 2 ماں بدولت نے مان لی ہے جی، یہ 54 ہو گئی. تو اگر 2 کے ساتھ 52 گوارا ہیں تو ایک اور بھی برداشت کر لو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ رہا یہ کہ یہ تیسری کہاں سے نکالی؟ اور ذرا حساب کتاب، نیند میں نہیں بیٹھے ہم، مر نہیں گئے. غزالی زمان کے غلام بھی زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کا غلام بھی زندہ ہے. یہ حساب کا مسئلہ ہے، دلائل کا مسئلہ ہے، اور دلائل سے بات کرو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی تیسری جو کہتے ہو، تیسری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات کی بھی ماشاءاللہ کثرت ہے. دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے 1 2 3، ایک ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلی جماعت، دوسری جماعت،
तीसरी जमात। तो 1 2 3 और पहली दूसरी तीसरी में कोई फर्क है या एक है? एक कहां से हो गई? देखें एक नहीं है ना, मैं यही बात बताना चाहता हूं। 1 2 3 जी, इसमें नंबरिंग नहीं है, तरतीब नहीं है। क्या 3 बंदे आए जलसे में, यूं तो कहेंगे 1 2 3 बंदे बैठे हैं, लेकिन इसमें यह नहीं है पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। लेकिन जब कहेंगे पहला दूसरा तीसरा तो इसमें तरतीब आ जाएगी। इसका मतलब होगा जो पहला है वो दूसरा नहीं, वो तीसरा नहीं, जो दूसरा है वो पहला नहीं, वो तीसरा नहीं, जो तीसरा है ना पहला है ना दूसरा है। तरतीब होगी, पहली जमात पढ़ेंगे तो फिर दूसरी में बैठेंगे, दूसरी पास करेंगे तो फिर यह नहीं कि पहले के बाद तीसरी आ जाएगी। तीसरी का मतलब तीसरे नंबर वाली। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने अक्ल फहम अता फरमाई है, जरा खुद चेक कर लें। ये अक्ल इसलिए होती है भी नफा नुकसान को समझे। बंदा रो रहा था जोर जोर से, वो धार हुआ। किसी ने कहा क्या हो गया? कहते मेरी बीवी बेवा हो गई। उसने कहा तुम जिंदा बैठे और बेवा कैसे हो गए? कहते पक्के बंदे ने मुझे बताया। तो पक्के बंदे जब ऐसे मार्केट में आ जाए ना, जिथा से ना पैर ना तेरी फेर ना फेर, फिर सो रहे थे यार मैं क्या करूं। अब चलिए मैंने जगाया आपको, अब समझे तीसरी वो होगी जो तीसरे नंबर पर हो। और मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, मर जाना है मुसलमान कहलाते तो कलमे की लाज रखो, मर जाना है कब्र में सरकार को मुंह दिखाना है, मैदान महशर में अल्लाह रसूल के हुजूर पेश होना है। गलत बात ना करो, ऐसी सच्ची और सही बात करो कब्र को भी रंग लग जाए, आखिरत भी समझ जाए, अल्लाह उसका रसूल भी खुश हो जाए। तीसरी वो होती है जो तीसरे नंबर पर हो। मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, ईद उल फित्र कब मिली, ईद उल अदहा कब मिली, जुमा वाली ईद कब मिली, ईद मिलाद कब हुई, अब तरतीब देखनी पड़ेगी। मक्का में, पूरे मक्कातुल मुकर्रमा की जिंदगी में ईद उल फित्र का वजूद नहीं, ईद कुर्बानी का वजूद नहीं, जुमा का वजूद नहीं, ये मिली हिजरत के बाद। सरकार की उम्र शरीफ थी 53 बरस, हिजरत फरमाई, दूसरा साल था हिजरत का, 55वां साल था उम्र शरीफ का। ईद उल अदहा मिली, ईद उल फित्र मिली, मस्जिद जुमा मदीना तैयबा की सरजमीन पर आज भी मौजूद है, जहां सरकार ने पहले जुमा अदा फरमाया। ये तीनों ईदें मिली हिजरत के बाद। 53-54 साल के बाद ईद मिलादुन नबी हुई, 53-54 साल पहले। तो ईद मिलाद तीसरी ईद नहीं है, यह इस्लाम की सबसे पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। और पहले भी इस माने में नहीं कि इत्तेफाकिया बन गई, बल्कि पहली बमाना बुनियादी, यानी ये ना होती तो कोई ईद नसीब ना होती। सारी ईदें नसीब हुई हैं सरकार के बाक मिलाद की बरकत। ठीक है भाई, ये मेरे भाई की पर्ची हो सकी है जी। इस हवाले से टाइम खत्म, वरना मेरा जो है ना वो जितने दोस्त तशरीफ बाहर से तशरीफ कच्चे से आए हैं वो कहते हैं आज हमें पक्का करके भेजे। यानी उस सवालों के जवाब थे। तो मजबूरी ये है कि भी टाइमिंग है जी, फोन भी आ गया है कि भी आधा घंटा और दे रहे हैं जी, यानी ये भी 12वीं की बरकत है, वरना ये भी ना मिलता। इसलिए जो मसले हुए इंशाल्लाह फिर मौके पे मैं अर्ज कर सकूंगा। जुमा पे आ जाइएगा, लिस्ट दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सारे निपटा दूंगा। सदाएं दुरूदू की आती रहेगी, मेरा दिल इनसे शाद होता रहेगा। खुदा रखे आबाद अहले सुन्नत को, नबी का मिलाद होता रहेगा। जो चुप रहेगा तो मैं 2 घंटे का खुतबा और पढ़ता रहूंगा। नबी का मिलाद होता रहेगा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।